داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 8۔ ساتویں لڑکی جب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعہ نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں، جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے آخری 17 سال سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ عمر جائے تو اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبر میں دفن کیا گیا۔ وہ جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہاں تھی کہ وہ سمندر پار سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے متعلق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شیدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگنا ماریوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمران کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے ان بادشاہوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوشش دشمن نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیر سے زیادہ سازش کی۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا، تاریخ اسلام وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحر روم میں نظر آتش کیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بحر روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دبا لیا۔ اسے سلطان جنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحر روم کے پار شہارا کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں شاہ اگسٹس، شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا دیے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاح اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا تھا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے حد انعام دیے۔ صلیبی سربراہ اس کے وہیں منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار نازی پر ہی ہو سکتا تھا۔
इसी के खत के मुताबिक उन्होंने हमले के लिए बेड़ा रवाना किया था, मगर उनके साथ नाजी का तहरीर राब्ता पहले भी मौजूद था। उन्होंने नाजी के इस खत की तहरीर पहले दो खतों से मिलाई तो उन्हें शक हुआ, ये कोई गड़बड़ है। उन्होंने काहिरा में जासूस भेज रखे थे, मगर उनकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। उन्हें यह बताने वाला कोई न था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उससे साजिश सालारों को खुफिया तरीके से कत्ल कर दिया और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया। और सलीबी सरबराहों और बादशाहों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जिस ख़त पर उन्होंने बेड़ा रवाना किया था वो ख़त नाजी का ही था, मगर हमले की तारीख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तब्दील करके लिखी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थी कि कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। मलर के मुंह से बात तक नहीं निकलती थी। वो शिकस्त खोरदा था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था। कॉन्फ्रेंस अगले रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। रात के वक्त ये तमाम सरबराह शिकस्त का गम शराब में डूबे रहे। एक आदमी इस महफिल में आया, उसे सिर्फ रिमांड जानता था। वो रिमांड का काबिल एतमाद जासूस था। वो हमले की शाम मिस्र के साहिल पर उतरा था। उससे थोड़ी ही देर बाद सलीबियों का बेड़ा आया था। उसकी आंखों के सामने ये बेड़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कलील फौज के हाथों तबाह हुआ था। ये जासूस मिस्र के साहिल पर रहा और उसने बहुत सी मालूमात मुहैया कर ली थी। रिमांड ने उसका तारुफ कराया तो सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उस जासूस को मालूम था कि सलीबी सरबराहों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कराने के लिए रॉबिन नाम का एक माहिर जासूस समंदर पार भेजा था और उसकी मदद के लिए 5 आदमी और 7 जवान और खूबसूरत लड़कियां भेजी थीं। जासूस ने बताया कि रॉबिन जख्मियों के साथ जख्मी होने का बहाना करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में पहुंच गया था। उसके 5 आदमी ताजिर के भेष में थे। उन्हें क्रिस्टोफर नाम के एक आदमी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तीर चलाया, मगर तीर खता खा गया। 5 आदमी पकड़े गए और 7 लड़कियां भी पकड़ी गईं। उन्होंने कहानी तो अच्छी गढ़ ली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों को पनाह में ले लिया और 5 आदमियों को छोड़ दिया था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक माहिर सुराग रसा जिसका नाम अली बिन सुफियान है, अचानक आ गया। उसने सबको गिरफ्तार कर लिया और 5 में से एक आदमी को सबके सामने कत्ल करा के दूसरों से इकबाल जुर्म करवा लिया। जासूस ने कहा, मैंने अपने मुतालिक बता दिया था कि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुझे जख्मियों की मरहम पट्टी की ड्यूटी दे दी। वहीं मुझे ये इत्तला मिली कि सूडानियों ने बगावत की थी जो दबा ली गई है और सूडानी अफसरों और लीडरों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रॉबिन, 4 आदमी और 6 लड़कियां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में हैं, लेकिन अभी तक साहिल पर हैं। 7वीं लड़की जो सबसे ज़्यादा होशियार है, लापता है। उसका नाम मोबी अरतलास है। मोबी कहलाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कैंप में नहीं है और उसका सुराग रसा अली बिन सुफियान भी वहाँ नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ कि रॉबिन, उसके आदमी और लड़कियाँ मौत के ख़तरे में हैं। मर्दों की ही हमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए, लड़कियों को बचाना लाजमी है। आप जानते हैं कि सब जवान हैं और चुनी हुई खूबसूरत हैं। मुसलमान इनका जो हाल कर रहे होंगे उसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, शाह अगस्टस ने कहा। अगर मुझे यकीन दिलाया जाए कि लड़कियों को जान से मार दिया जाए तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रिमांड ने कहा, मगर ऐसा नहीं होगा। मुसलमान उनके साथ वहशियों जैसा सलूक कर रहे होंगे। लड़कियां हम पर लानत भेजती रही होंगी। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये भी हो सकता है, रॉबर्ट ने कहा, कि मुसलमान उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करके हमारे खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करने लगें। बहरहाल हमारा ये फ़र्ज़ है कि उन्हें कैद से आज़ाद कराएं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। खजाना खर्च करने के ये लड़कियां सिर्फ इसलिए कीमती नहीं कि लड़कियां हैं, जासूस ने कहा। वो दरअसल तरबियत याफ्ता हैं। इतने ख़तरनाक काम के लिए ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। आप किसी जवान लड़की को ऐसे काम के लिए तैयार नहीं कर सकते कि वो दुश्मन के पास जाकर अपने आप को दुश्मन के हवाले कर दे। इस काम में इज्जत तो सबसे पहले देनी पड़ती है और ये ख़तरा तो हर वक्त लगा रहता है कि जो ही दुश्मन को पता चल गया कि लड़की जासूस है तो उसे तकलीफ़ें दी जाएंगी, फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। इन लड़कियों को हमने ज़रे कसीर सर्फ करके हासिल किया, फिर ट्रेनिंग दी थी और उन्हें बड़ी मेहनत से मिस्र और अरब की ज़बान सिखाई थी।
एक ही बार 7 तजुर्बे कार लड़कियों को ज़ाय करना अक्लमंदी नहीं। क्या तुम एतमाद से कह सकते हो कि लड़कियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप से निकाला जा सकता है? अगस्टर ने पूछा। जी हाँ, जासूस ने कहा, निकाला जा सकता है। इसके लिए गैर मामूली तौर पर दिलेर और पुख्ताकार आदमियों की ज़रूरत है। मगर यह भी हो सकता है कि वो एक दो दिन रॉबिन, उसके चारों आदमी और लड़कियों को काहिरा ले जाए। वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम वक्त ज़ाया ना करें तो हम इन्हें कैंप में ही जा लेंगे। आप मुझे 20 आदमी दे दें, मैं इनकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन आदमी ऐसे हों जो जान पर खेलना जानते हों। हमें हर कीमत पर इन लड़कियों को वापस लाना है। मलर्क ने गरज कर कहा। उस पर बहरे रूम में जो बीती थी उसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सलीबियों के मुत्तहिदा बेड़े में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मिस्र की फतेह का सेहरा उसके सिर बंधेगा। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे मिस्र के साहिल के करीब भी ना जाने दिया। वो जलते हुए जहाज में जिंदा जल जाने से बचा तो तूफान ने घेर लिया। अब बात करते उसके होंठ कांपते थे और वो ज्यादातर बातें मेज पर मुक्के मारकर या अपनी रानों पर जोर जोर से हाथ मार मार कर अपने जज्बात का इजहार करता था। उसने कहा, मैं लड़कियों को भी लाऊंगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल भी करूंगा। मैं उन्हीं लड़कियों को मुसलमानों के सल्तनत की जड़ें खोखली करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं सच्चे दिल से आपकी तायीद करता हूँ। शाह मलर्क रेमांड ने कहा, हमें तरबियत याफ्ता लड़कियों को इतना आसानी से ज़ाय नहीं करना चाहिए। ना हम करेंगे। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि शाम के हरमों में हमने कितनी लड़कियां दाखिल कर चुके हैं। कई मुसलमान गवर्नर और अमीर इन लड़कियों के हाथों में खेल रहे हैं। बगदाद में लड़कियां उमरा के हाथों ऐसे मुतअद्दिद अफराद को कत्ल कर चुकी हैं जो सलीब के खिलाफ तलवार उड़ लेकर उठे थे। मुसलमानों की खिलाफत को हमने औरत और शराब से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इत्तेहाद नहीं रहा, वो ऐशो इशरत में गर्क होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी हैं जो अगर जिंदा रहे तो हमारे लिए मुस्तकिल खतरा बने रहेंगे। एक नूरुद्दीन जंगी और दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अगर इन दोनों में से एक में ज़्यादा देर तक जिंदा रहा तो हमारे लिए इस्लाम का ख़त्म करना आसान नहीं होगा। अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत दबा दी है तो इसका मतलब यह है कि यह शख्स इस हद से ज़्यादा ख़तरनाक है जिस हद तक हम उसे समझते रहे हैं। हमें मैदान जंग से हटकर तकरीब कारी का मुहाज भी खोलना पड़ेगा। मुसलमानों में तकरीब कारी और बेइत्मीनानी फैलाने के लिए हमें लड़कियों की ज़रूरत है। हमें अपने कामयाब तजर्बों से फ़ायदा उठाना चाहिए। लोई हफ्तुम के भाई रॉबर्ट ने कहा, अरब में हम मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे मुसलमानों के हाथ मरवाओ। मुसलमानों को ज़हनी अय्याशी का सामान मुहैया कर दो तो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता है। तो मुसलमान का ईमान आसानी से खरीद सकते हो। उसने अरब के कई अमीरों और वज़ीरों को मिसालें दी। उन्हें सलीबियों ने औरत, शराब और दौलत से ख़रीद लिया था और उन्हें अपना दरफरदार दोस्त बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमज़ोरियों के मुतालिक बातें हुईं। लड़कियों को आज़ाद कराने के अमली पहलुओं पर गौर हुआ। आखिर यह तय पाया कि 20 बहुत दिलेर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएं। उसी वक्त 4-5 कमांडरों को बुलाया गया। उन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों में थोड़ी देर इस मुहिम के ख़तरों के मुतालिक बहस की। एक कमांडर ने कहा, हमें पहले ही ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के फ़ौज पर खून करती रहेगी। इस हम फोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं, लेकिन ये आदमी 100% काबिल एतमाद होने चाहिए। अगस्टस ने कहा, वो हमारी तुम्हारी नज़रों से ओझल होकर ये काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना करें और वापस आकर कहें कि वो बहुत कुछ करके आए हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे। एक कमांडर ने कहा कि हमारी फ़ौज में ऐसे सिपाही भी हैं जिन्हें हमने जेल खानों से हासिल किया था। वो डाकू, चोर और रहज़न थे। उन्हें बड़ी बड़ी लंबी सजाएं दी गई थीं। इन्हें जेल खाने में मरना ही था। हमने इनसे बात की तो वो जोश और खरोश से फ़ौज में आए। आपको शायद ये मालूम करके भी हैरत होगी कि नाकाम हमले में इन सज़ा याफ्ता मुजरिमों ने बड़ी बहादुरी से कई जहाज़ बचाए हैं। मैं लड़कियों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की मुहिम में ऐसे 3 आदमी भेजूंगा। मौरिखों ने लिखा है कि मुसलमानों में ऐशो इशरत का रुझान बढ़ गया
اور اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کا اخلاق تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے میں ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا جگاڑ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا ماریوس بھی تھا، جسے روم کے ذیل خانوں سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بھیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو گیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 سپاہیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کئی عملی ٹریننگ دی گئی، صرف زبانی ہدایتیں اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کمانڈر مارے گئے تھے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سالار اڑوں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل و دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی کامیابیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور قید خانوں میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، ان سب کو یہاں پر بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کا ایک کمانڈر کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوتوں کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلیان ان کمانڈروں میں سے نہیں جو باہر موجود ہیں، وہ زخمیوں میں بھی نہیں اور جو مرے ہوئے ہیں ان میں بھی نہیں۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی، جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو۔ علی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ بالیان لاپتہ ہے تو بحر روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہ خانوں میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بھیج دو۔ زیادہ ضروری ہو تو یہ کہ اپنے جاسوس اپنے ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان جنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امیروں سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان جنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکیں یا اپنے گھروں کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات غور سے سنی اور کہا، اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانت دار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کے سازشین قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اپنی نظر سرحد سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یہ سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحر روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشوں کو روک لیں گے۔
सुल्तान मोहतरम, सलार ने कहा, हम मायूस नहीं, सिर्फ दो लानतों से बचो मेरे अजीज रफीको। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मायूसी और जहनी अयाशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर जहनी अयाशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। उस रोज़ अली बिन सुफियान जा चुका था। उसने फौरन एक कासिद बहरे रूम के कैम्प की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि रॉबिन उसके चारों साथियों और लड़कियों को घोड़ों पर सवार करके 20 मुहाफिजों के पहरे में दारुल हुकूमत भेज दो। कासिद को रवाना करके उसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमांडर बलियान की तलाश में निकल गया। उसने इन सूडानी कमांडरों से जो बाहर बैठे थे बालियान के मुतालिक पूछ लिया था। सबने कहा कि उसे लड़ाई में कहीं भी नहीं देखा गया था और ना ही वो इस फौज के साथ गया था जो बहरे रूम की तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बिन सुफियान बालियान के घर गया तो वहाँ उसकी 2 बूढ़ी खादिमाओं के सिवा और कोई न था। उन्होंने बताया कि बालियान के घर में 5 लड़कियां थीं। इनमें जिसकी उम्र ज़रा ज़्यादा हो जाती वो उसे गायब कर देता और उसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खादिमाओं ने बताया कि बगावत से पहले उसके पास एक फिरंगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बालियान उसका गुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज़ बाद जब सूडानियों ने हथियार डाल दिए तो बालियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ, दूसरे घोड़े पर उस फिरंगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। उनके साथ घोड़सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बुढ़िया ने बताया कि ये घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गईं। अली बिन सुफियान वहाँ से वापस हुआ तो एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया और अली बिन सुफियान के सामने रुका। उस पर फ़खरुल मिस्री सवार था। कूद कर घोड़े से उतरा और हाँफती कांपती आवाज़ में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उस बदबख्त बालियान और उस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं उनसे इंतकाम लूँगा। जब तक उन दोनों को अपने हाथों कैद नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ वो किधर गए हैं। मैं उनका पीछा किया लेकिन उनके साथ 7 मुसल्लह मुहाफिज हैं। उसने अली बिन सुफियान के घोड़े पर हाथ रखकर कहा, खुदा के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें। मैं उनके ताक़ुब में जाऊँगा, उन्हें ख़त्म करके आऊँगा। अली बिन सुफियान उसे इस वादे से ठंडा किया वो इसे 4 के बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली बिन सुफियान मुतमईन हो गया। ये तो पता चलता है कि वो किस तरफ गए हैं। उस वक्त बालियान उस सलीबी लड़की के साथ जिसका नाम मोबी था साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमांडरों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ़ी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के अताब से भाग रहा था और दूसरे ये कि वो मोबी जैसे हसीन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने उसे अंधा कर दिया था। उसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मोबी उसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो ख़त्म हो चुका था। सारा मकसद तबाह हो गया था। ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। उसके लिए उसने अपने हुस्न और अपनी इज्जत की कुर्बानी दे दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के आदमी के अय्याशी का जरिया बनी हुई थी। बालियान इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मोबी उसे बुरी तरह चाहती है, मगर मोबी उससे नफरत करती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुई थी और उसे अपनी हिफाजत की ज़रूरत थी। उसे बहरे रूम पार करना था, ये रॉबिन तक पहुंचना था। उसे मालूम नहीं था कि रॉबिन उसके साथ जो ताजिर के भेस में थे पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन बालियान जहां अच्छी सायादार जगह देखता रुक जाता। उसने शराब जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। उसने बलियान को इतनी ज़्यादा पिला दी थी कि वो बेसुध हो गया। उसने साथ जो मुहाफिज थे वो कुछ दूर कुछ परे सो गए थे। मोबी ने देखा कि उनमें एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज़्यादातर इसी के साथ हर बात क्या करता था। मोबी ने उसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई। उससे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सल्तनत
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे गैर मुल्कियों से आज़ाद हो सको। तुम्हारा ये कमांडर बालियान इस कदर याश आदमी है कि उसने शराब पी कर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतेह हासिल करता। उसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही राउंड में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज ख़त्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अय्याशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं उसे समंदर पार ले चलूं, उसे अपनी फ़ौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी करूं, मगर मुझे इस शख्स से नफ़रत है। मैंने फ़ैसला किया है अगर मुझे शादी ही करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर इसे फ़ौज में रुतबा दिलवाना है तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे, और वो आदमी तुम हो। तुम नौजवान हो, दिलेर हो, अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूँ। समुंदर पार चलो, फ़ौज का रुतबा और मालो दौलत तुम्हारे कदमों में होगा। मगर इस आदमी को यहीं ख़त्म करो। ये सोया हुआ है, उसे कत्ल करो और आ जाओ, निकल चलें। उसने मुहाफिज के गले में बाहें डाल दी। मुहाफिज उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवाना वार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मोबिस जादूगर की माहिर थी, वो ज़रा परे हट गई। मुहाफिज उसके तरफ बढ़ा तो उसके अक़ब से एक बर्छी उसकी पीठ में उतर गई। उसके मुंह से हाय निकली और वो पहलू के बल लुढ़क गया। बर्छी उसकी पीठ से निकली और उसे आवाज़ सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि वो तुमने उसे कत्ल कर दिया कि पीछे एक हाथ ने उसके बाजू को जकड़ लिया, झटक देकर अपने साथ ले गया। उसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दोस्त हैं, हमारी ज़िंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सज़ा पाई। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मोबी ने कहा, समंदर में डूबने। एक ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक बालियान आएगा हम वहीं तक जाएंगे। और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाक़या सुनाया गया। मूबी ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाशी दी, मगर उनकी यह बात सुनी अनसुनी कर दी। लड़की उसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने उसकी बात सुनी थी। वो मूबी के हुस्न और शराब में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया। मूबी ने उसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बालियान ने परवाह न की। वो अपने आप में नहीं था। मूबी अब आज़ाद नहीं हो सकती। उसने देख लिया था कि लोग अपने दोस्तों का कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। अली बिन सुफियान ने न जाने क्या सोचकर इनका ताक़ुब नहीं किया। बगावत के बाद के हालात को मालूमात पर लाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ बहुत मसरूफ़ हो गया था। नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल।